organization. He has worked as is currently working as advisor for Akhuat Foundation as well, uh, and he has traveled extensively in KP Fata, which is now newly merged district. He has done phenomenal work with Akhuat and a lot of other organization. He loves calling himself as a social entrepreneur more than any other experience, and his work is extensively on impact. और हुसैन साहब जो हैं वो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो मुख्तसर बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लें। जोग्राफिकली हमारे साथ मैदान से भी लोग हैं, हमारे पास एनएमडी से भी लोग हैं, और हुसैन साहब वी हैव ऑलमोस्ट 52 पीपल एज पार्टिसिपेंट्स, और हमारे साथ स्पोर्ट टीम में नईम साहब हैं यूएनडीपी से, आमना हैं यूएनडीपी से, और बाकी जो हमारे पार्टनर्स हैं दे आर ऑल्सो हेयरिंग यू एंड वी आर ऑल एक्साइटेड टू हैव यू, सो ओवर टू यू। हुसैन साहब का माइक अनम्यूट है। जी हैदर, उनका माइक जी आवाज ब्रेक। जी अरूज, हेलो अरूज जी, आपका थोड़ा सा आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। वुड यू लाइक मी टू स्टार्ट? व्हेन यू वांट मी टू स्टार्ट आई कैन स्टार्ट। We are all up. We are waiting for you to start. It's 2:29. If someone still has to join, तो we can give them the 30-second जो है ना, जो टाइम फ्रेम हमारे पास है. But I have no problem at all. I just जो कहते हैं put my phone on silent. जी चलें जी, let's start. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. It's a matter of great privilege and honor for me to join into this hackathon. I'm very grateful to Heather Miraj Saab and also to Rida Rafiq Saiba and to Aruj Fatma, who's my teaching assistant, senior teaching assistant, and Naeem Saab, pleasure knowing that you are also over here. So to all the partners who in this time of adversity and in this time of challenges and in this time of also opportunities to move forward, I think that nothing better than this hackathon could have been arranged. So to streamline and to structure and to institutionalize the passion, the determination, the energy, and the innovativeness and creativity of our great youth, especially of the province of KP, where I have, with the grace of Allah, extensively traveled. I've interacted. I've gone to Mardan many a times, like जो है Miraj Haider Saab was mentioning, and I have also gone to Fata a lot of times. I've gone to Swat, to Chitral, to Swabi, to Kohad. I hardly think there's any area I've not gone to actually in KPK. However, having said that, हुसैन साहब सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप अपने लैपटॉप को या फोन को थोड़ा सा नीचे करते हम आपका पूरा चेहरा देख सकें। अभी आपका चेहरा I'm very bad. Perfect. I'm very bad with these video technologies, जो है ना. नहीं, we are all here for you जी. And I'm also very camera shy, by the way. But that's how जिसको कहते हैं the pandemic has changed life, and therefore this is a new जिसको कहते हैं reality. And all my life I was shy from the camera, and now जिसको कहते हैं everything has to be done like this. So I would just like to share with all of the youth that before this pandemic, this is how life changes. And this is how you also have to change. I share it with my students also, that before the pandemic, I think I only had maybe 2 or 3 Skype discussions in my life. And Johanna, I never would opt for digital Johanna trainings or workshops or things like that. And teaching, definitely never. But since then, every day जो है, this is the 5th software जो अभी जो मिराज हैदर साहब ने introduce मुझे कराया है. This is the 5th software. So I'm now using 5 different softwares to conduct workshops and trainings around the world. So this is how life changes immediately. And that is the beauty of life, and that is what adaptability is all about. And that is what you have to adapt to. You cannot resist change, but you have to take it, Joanna, with a stride and move ahead and acquire a skill, and then make sure that you can replicate it for the benefit of others. Ladies and gentlemen, I know that there's much to talk, and I did mention to the organizers that maybe the time is a little bit less, but no problem. I can always rejoin you, not for this hackathon, but later on, now that I have acquired this skill,
now people say that, sir, please, Joanna, let's not, Joanna, engage all the time. So whatever you do, you should do it properly. Well, the topic overall, जो है, like all of you are aware, is within the domain of climate change adaptation and also the health pandemic, COVID-19, which is right now over here. And what has been given to me is community engagement for social impact. Well, I will not go into the academics. The academics I can send later on, and now because we all live in this virtual world, there's so much of information academically that people like you who are tech savvy, you can pick up anything anywhere in the world and read what is available. So therefore, usually I always skip the academics. However, I would like to share with you different interventions, and then I will come directly to your province, and then we'll open up question and answer session, and maybe I'll try to answer some questions or maybe give my own perspective to it. So I would like this, ladies and gentlemen, to be a didactic session, and hopefully by the end of the session, I should be learning more. First of all, Johanna, I think all of you are aware of a recent disaster which took place in Thripparkar. And I am, because I'm based in Lahore, and just like Haider Maraza was mentioning, that I've been with the Hooat since 2004 when it became an institution, and since then I've been a part of it. And I worked with SOS, I worked with Shaukat Khanum, I worked with CARE Foundation and some international INGOs also. Now, I would just like to share with you that a small example that this Thripparkar issue was raised, and we had this water scarcity, and we had this severe shortage of food and whatnot over there, and there was this crisis situation. And everyone was talking about Mithi. I think many people over here will be knowing about Mithi. You must have heard about Mithi and Mithi. And then Johanna teams were going over there. So I then also planned, and I went there with my team, and we went to Mithi. And when I went to Mithi, I thought that maybe Mithi is one of the most developed small towns that I had seen, because I had been traveling extensively, and it was very well developed. The only place where there was no load shedding. And मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको बाइलिंगुअल कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे केपी के हैं वो जो उर्दू में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो वो अच्छा उर्दू में कर देते हैं, ठीक है। मैं तो जो है ना, जस्ट बिकॉज आपके पीछे इंटरनेशनल फ्लैग इतने सारे, तो अंग्रेजी में शुरू हो गया था, ये तो और अच्छी बात है। चलें, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपकी गाइडेंस जो है ना इज ऑलवेज जो है ना अप्रिशिएटेड। अच्छा, तो जब कटिंग जो है ना, लंबी कहानी को छोटा कर देता हूँ, तो जब मैं वहाँ पे गया, तो सबसे पहले जो मैं रात को जब पहुँचा, तो हम लोग रात को तकरीबन जो है ना कोई 12:30 बजे जो है ना मिठी शहर पहुँचे। तो लोगों ने बड़ा मना किया कि इतने रात को जो है ना आप जो है ना ट्रैवल ना करें इंटीरियर सिंध के अंदर, तो आप जो है ना सुबह जाएं। मैंने कहा नहीं, रात को ही पहुँचेंगे हम। तो जब 12:30 बजे पहुंचे और डेजर्ट के अंदर से हम निकले, तो मिठी पहुंचे, तो वहां पे जो है ना, मैंने कहा रोशनी रोशनी है, हर जगह रोशनी है, स्ट्रीट लाइटें सारी ऑन थी, और इतनी तो लाहौर में स्ट्रीट लाइटें नहीं होती। बहरहाल जब सुबह में उठा, तो मैंने देखा कि लैंड क्रूजर के जो है ना फ्लीट थी, गाड़ियां ही गाड़ियां, दर्जनों जो है ना लैंड क्रूजर ही क्रैश। यहाँ पे तो मैंने सुना था जो है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और इतनी लैंड क्रूजर भी मैंने लाहौर में नहीं देखी कभी। और फिर जो है ना मैंने देखा कि लोगों ने कैरावान्स लेके आए हुए हैं और सारा कुछ आए हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। अच्छा, बहरहाल एक दिन तो मिलने मिलाने में गुजर गया। तो जब फिर मैं अगले दिन जो है ना, मैंने कहा चलो फील्ड का चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा फील्ड शील्ड जो है ना वो इस्लाम कोर्ट है। अच्छा, मैंने सोचा बहुत जो है ना ये शायद कोई प्रिमिटिव जगह होगी। मैं जो है ना फिर अपनी टीम के साथ निकला। अच्छा, हमारे पास कोई लैंड क्रूजर नहीं थी, हमारे पास एक पुरानी करोला गाड़ी थी। तो हम अपनी पुरानी करोला गाड़ी पे ना सारे लोग देखेंगे, अच्छा ये तो, हम तो सोचते थे बहुत बड़ा दौरा हुआ था। तो ये किसी ने मुझे ऑफर भी की कि सर ये अब हमारी जीप ले जाएं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यही गाड़ी ठीक है। अच्छा, खैर हम निकल गए इस्लाम कोर्ट जो है ना। इस्लाम कोर्ट रास्ते में कुछ जगहों पे हम रुकते गए मेन रोड के ऊपर से। तो रोड बड़ी अच्छी थी, और मैं क्योंकि इस्लाम कोर्ट पहले गया हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि वो जो है ना कोई होगी, कोई कच्ची बस्ती टाइप चीज होगी। वहां पे पहुंचा तो वहां पे भी जो है ना कम, थोड़े से कम, बट जो है ना काफी जो है ना मुझे जो है ना तरक्की नजर आई। सबसे पहले तो जो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है, कि TCF ने एक बहुत अच्छा स्कूल वहां पे बनाया हुआ है। बिल्कुल जब आप एंटर हो रहे होते हैं इस्लाम कोर्ट के अंदर जो है ना, तो TCF का आपको स्कूल नजर आता है, और उसमें कई हजार बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। वो सबसे अच्छी बिल्डिंग है।
अच्छा, बहरहाल बाकी शहर थोड़ा सा जो है ना आप कह सकते हैं कि उसी तरह के जैसे हमारे बाकी देहाती इलाकों में होते हैं, और गाड़ियां बहुत थी। अच्छा, वहां पे जब मिले हम कुछ जो है ना स्टेक होल्डर्स को, तो उन्होंने कहा कि बस सर इधर ही है, आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं कम्युनिटी को मिलना चाहता हूँ, इधर क्या? उन्होंने कहा हाँ, ये साथ जो है ना 2 3 4 गाँव हैं। हम चले गए, जाके 2 3 4 गाँव को मिले। मैंने कहा कि ये तो इन लोगों को तो जरूरत से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं, तो इनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने कहा छोड़ें जी स्टेक होल्डर्स को, निकलते हैं। मैंने कहा मैप निकालें, और हम फिर निकल गए। अच्छा, फिर तीसरे दिन जो है ना, मैं और स्टोरी को शॉर्ट कर देता हूँ, हम आगे निकल गए। हम जो है ना फिर उडानी चले गए, डिप्लो चले गए, हम लोग जो है ना चाचरो चले गए, हम लोग नगर पार्कर चले गए, और उधर गांव वगैरह चले गए। एक ऐसे गांव गए जहाँ पे जो है ना जीप भी नहीं जा सकती थी। खैर हमने तो जीप जो है ना, वो पुरानी सुजुकी जीप, वो ज्यादा वैसे अच्छी चलती है उधर, बट वो भी नहीं जाती थी, तो फिर हम पैदल चले गए। और जब फिर वहां पे गए, तो जो है ना उधर गांव वालों से जब मैंने पूछा कि कोई आए हैं कोई नहीं आए, तो उन्होंने कहा नहीं, एक ही आए थे और उन्होंने हमें ये बना दिया है। और जो है ना उन्होंने कहा इससे बारिश का पानी आप इकट्ठा करेंगे। तो 3 साल से तो बारिश हुई नहीं, हमें समझ नहीं आती कि इस टैंकी का हम क्या करें, जो इन्होंने इतना बड़ा जो है ना हमें टैंकी बना के दे दी है, बारिश तो हो कोई नहीं रही। वो कहते हैं पानी आप इकट्ठा करें बारिश से। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें हुई, उसका वीडियो जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे और पहली दफा जिंदगी के अंदर जब मैं सोशल मीडिया पे गया हूं ना, वो यही थरपारकर की वजह से गया हूं कि मेरे फिर कुछ साथियों ने कहा कि सर आप जो है ना ये चीजें जो है ना लगाएं, कि यहाँ पे जो है ना किस तरह गलत तरीके से जो है ना रिलीफ वर्क हो रहा है, किस तरह अरबों रुपए जाया हो रहे हैं, और जो है ना यहाँ पे जो है ना ये सही तरीका कार नहीं है, और जिनको चाहिए उनको कुछ नहीं मिल रहा, और जो चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा। जैसे मैंने आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और इसकी वीडियो ही बनी हुई है मेरे ख्याल में पार्ट 2 के नाम से, थ्रपारकर पार्ट 2 के नाम से, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग जो है ना जब भी जो है ना डिजास्टर रिलीफ के लिए निकलते हैं, या हम निकलते हैं कि जी अच्छा चलें चल के कोई इंटरवेंशन करें, तो हम अपने ख्याल से जो समझते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे जैसे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हुआ, मतलब है कि मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, और जो है ना हम समझते हैं कि हम अपनी अकल से जो है ना जो चीज प्रोजेक्ट बना रहे हैं और जो इंटरवेंशन बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा, और उसी फिट को जो है ना हम लेके जाते हैं, और जाके उस कम्युनिटी के ऊपर जो है ना उधर जो है ना उसको हम लोग मटेरियलाइज कर देते हैं। और उसका इम्पैक्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस एनजीओ ने जो है ना कम से कम मेरे ख्याल में कोई 30 40 या 50 लाख रुपए तो लगाया होगा उस काम के लिए, बट उसका इम्पैक्ट जो था ना वो जीरो था। बल्कि रिजेंटमेंट थी कम्युनिटी के अंदर कि जी वो ये चीज बना गए जिसका हमें फायदा ही कोई नहीं है। और उन्होंने ये एहसास नहीं किया कि जो है ना कहते हैं कि बाद में जो है ना हमें ये कहा कि जी आप लोग जो है ना उधर से इस्लाम कोर्ट से, जो कि वहां से 45 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क के ऊपर है, कि वहां से टैंकर मंगा लिया करें। तो वो गुफ्तगू जब आप सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ, वो कहते हैं जी हम टैंकर के पैसे कहाँ से दें, और टैंकर यहाँ पे पहुंचेगा कैसे, वो तो फंस जाएगा रेत के अंदर जो है। तो ये जो मसले मसाइल है ना, ये जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट, और ख़ास तौर पे जो भी आपका सोशल इम्पैक्ट है, कि जिसको हम कहते हैं कि जो ज़मीनी हकायक हैं वो हमें पता होने चाहिए। और दूसरा जो है, हमें कम्युनिटी के अंदर जो है वो घुस के, रह के, बैठ के, खाना खा के, पानी पी के, उनके साथ जो है ना वक्त गुजार के, सिर्फ उसी वक्त हमें पता चलेगा कि उनकी क्या ज़रूरत है। मैं आजकल जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा हूँ लम्स के अंदर। तो पहले मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही पढ़ाता था, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर भी जो है ना हम लोग जो है ना एक टूल को यूज करते हैं। आप लोगों ने भी शायद यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ना उस टूल को जो है ना पढ़ा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, उसको स्टेक होल्डर एनालिसिस कहते हैं। बट जो स्टेक होल्डर एनालिसिस बुक्स के अंदर है, और जो मैं अक्सर औकात जो है ना इंटरनेट पे देखता हूँ, वो तो जो है ना प्रैक्टिकल नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं रंग भरने के लिए बहुत अच्छा है, और रिपोर्ट के अंदर जो है ना उसको डालने के लिए बहुत अच्छा है, कि एक बड़ा खूबसूरत जो है वो फ्रेमवर्क बेस्ड, और जिसको कहते हैं रंग बिरंगा जो है ना आप किसी एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर डाल लेते हैं, और वो स्टेक होल्डर एनालिसिस है, और उसके ऊपर आप फिर एक जो है ना स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान बना देते हैं, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। बट जैसे चल रहा होता है, मैंने आपको उसका जिक्र कर दिया था कि ये थ्रपारकर गिल। उससे पहले जो है
मैं भी अरूज से यही बात कर रहा था कि हम लोग सीखते नहीं है। उससे पहले जो है ना, जब 2010 में फ्लड्स आए थे और केपीके के अंदर भी बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी और नीचे खैर सदर्न पंजाब में बहुत ज्यादा हुई थी, हम लोगों ने सदर्न पंजाब के अंदर जो है ना इंटरवेंशन किया था, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा जो है ना डिजास्टर हुआ था। अखुवत ने कोई 10,000 फैमिलीज को जो है ना असिस्ट किया, और जो है ना हमने तकरीबन जो है ना कोई 2,000 प्लस जो है ना वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोगों ने जो है ना एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो है ना उनको हम लोगों ने मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर जो है ना जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना हम लोगों ने स्कॉलरशिप्स के थ्रू जो है ना वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर डाला। और मैं आई वॉज देयर फॉर मैनी मंथ्स जो है ना अगेन। तो जो मिसडायरेक्टेड है और जो ओवरलैपिंग है, दो चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एक तो मिसडायरेक्टेड बहुत होती है, और दूसरा जो है ना वो ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है। कि एक हम देखते हैं वो भेड़ चाल, आगे हम देखते हैं कि अच्छा वो जा रहा है, उसको हम फॉलो करते हैं कि बस यही रूट ठीक होगा। और होता क्या है, जैसे अभी जब मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड इसको कर देता हूँ कि कोविड-19 के ऊपर आप लोगों को खुद आपने टीवी के ऊपर देख लिया है कि जो है ना मतलब कई खानदान हैं उनके पास 10-10, 15-15, 20-20 राशन के बैग हैं। और वो अब जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो जो है ना जरूरतमंद है, तो वो 2 राशन के बैग अपने पास रख के 18 राशन के बैग फिर बेच देंगे। और जो बाकी लोग हैं जिनको जरूरत है उनको जो है ना राशन के बैग अभी भी नहीं पहुंच रहे, हालांकि बड़े अच्छे सिस्टम्स बन गए हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, आपका सब्जेक्ट भी है टेक्नोलॉजी। वो आपको पता है कि एक नेशनल डाटाबेस भी क्रिएट हो रही है, एक प्रोविंशियल डाटाबेस भी क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रिक्ट डाटाबेस भी क्रिएट हो रही है, एनडीएमए भी डाटाबेस क्रिएट कर रहा है, और जो है ना पीडीएमएस भी और केपीडीएमए भी जो है ना डाटाबेसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा हो कैसे रही है फिर? इसका मतलब ये है कि जो है ना टेक्नोलॉजी के अंदर गैप्स हैं, एप्लीकेशन के अंदर गैप्स हैं। और अगर गैप्स नहीं है तो फिर उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना लोगों को नहीं पता कि उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं आता था ये जो आपका मीटिंग्स वाला ग्रुप है, ये अगर मुझे अरूज ने कल शाम को ना सिखाया होता तो आज मैं ना कनेक्ट करता। इसी तरह मुझे जो है ना आउटलुक 365 का नहीं पता था। जब तक मुझे नहीं पता था तो मैं उसको कभी नहीं इस्तेमाल किया। जूम का मुझे नहीं पता था, तो जब तक जूम को नहीं किया तो नहीं कभी किया। फिर जो है ना बिग ब्लू क्वेश्चन है एक सॉफ्टवेयर जो है जो हम लम्स वाले यूज कर रहे हैं, मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना हुआ था खैर। तो वो भी जो है ना वो भी अब यूज हो रहा है। तो जाहिर बात है कि जब आप जो है एक एप्लीकेशन बनाते हैं या आप एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो फिर एक तो वो स्टेक होल्डर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जमीनी हकाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी यूटिलाइजेशन है, और उसके ओवरलैप को जो है ना आपने मैनेज करना होता है। तो ये सब चीजें आपने अपने प्लान के अंदर इंटीग्रेट करनी है। कि जो भी आप प्लान बना रहे हैं, आप माशाल्लाह 12 टीमें हैं जो मैंने सुना है कि जो है ना आप लोग प्लान्स बना रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जाके, मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं कि जब ये आईडीपीज का इशू हुआ तो इसके अंदर हमारा हुकूमत का बहुत बड़ा इंटरवेंशन था। बल्कि शायद जो है ना नईम इकबाल साहब को भी पता होगा और हैदर मिराज साहब को भी शायद पता होगा कि अखुवत जो थी वो पहली एनजीओ थी जिसने पोस्ट जिसको कहते हैं आईडीपीज जो है ना इंटरवेंशन की। और हम लोग जो है पहली एनजीओ थे जो प्रैक्टिकली जो है वो फाटा के अंदर जो है ना हम लोग गए, और हम लोगों ने एंगेज किया। और हर जो है ना जो 7 के 7 जो है ना जो फाटा के जो एजेंसीज हैं उन सब के अंदर गए। और मैं भी जो है ना मतलब है कि काफी अरसा मोहम्मद एजेंसी में भी रहा हूँ, बाजोड़ में भी रहा हूँ, खैबर के अंदर तो खैर बहुत ज्यादा टाइम जो है ना स्पेंड किया। और जो है उधर भी जो है ना खुरम के अंदर भी जो है ना मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो टाइम स्पेंड किए बगैर जो है ना हमारी इंटरवेंशन ठीक नहीं हो सकती थी। दूसरा जो है स्टेक होल्डर्स के साथ जो एंगेजमेंट थी, इसका मतलब यह है कि मैं जो एम्फोसिस कर रहा हूँ ना, जिसके ऊपर जो है ना मैं अपने पूरे इस सेशन का जो है ना जो मफहूम बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हम लोग फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनाते। तो हम लोगों ने वहां पे टाइम गुजारा, उधर सारे स्टेक होल्डर्स को मिले, हर रीजन, हर एजेंसी का हम लोगों ने मुख्तलिफ प्लान बनाया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इंटरवेंशन है इस वक्त जो है हमारे 38 जो है ना ऑफिसेज इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर फाटा के अंदर जो है ना 38 जो है ना हमारे परमानेंट ऑफिसेज हैं, लंडी कोतल तक। और जितने भी जिसको कहते हैं एरियाज, फार ऑफ एरियाज के अंदर, मियाँ बाजार के अंदर जो है ना हम लोगों का जो है ना ऑफिस है, ये परमानेंट ऑफिसेज हम लोगों ने बनाए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगेन जब तक जो है ना हम चीजों को ना जाने, और ये नहीं काफी कि जी मैं जो हूं ना मतलब है कि ये सोचूं कि जी मैं क्योंकि पेशावर में रहता हूं इसलिए मुझे बिल्कुल ये पता है
कि जो लंडी कोतल के जो मसले मसाइल हैं वो उनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे हैं और जो है ना मेरे जानने वाले हैं, तो मैं फ़ोन करूँगा नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं पता चलता। मैं आपको ये बता दूँ कि आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको वहाँ पे रहना पड़ता है, आपको वहाँ पे अपने आँख, कान और दिल और दिमाग को जो है ना खोल के जो है ना वहाँ के मसले मसाइलों को समझना पड़ता है और समझ के लिखना पड़ता है, और फिर उन्हीं लोगों से पूछना पड़ता है कि जी आप लोग क्या चाहते हैं। आप ये देखें कि जो है ना, मैं आपके साथ एक छोटा सा जो है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं शेयर कर सकता था आपके साथ, बट लेटर ऑन आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, फेसबुक एड्रेस है, यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस हैं, हम लोग तकरीबन 400 साढ़े 400 और वीडियोस भी जो है ना, मैंने अरूज को ही रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग अब अपलोड करते हैं कुछ अरसे तक। मैंने बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वाटर स्केर्सिटी के ऊपर जो है ना मुस्तफाबाद, गोबराबाद और इन सारे इलाकों के अंदर, और सिब्बी का पूरा इलाका जो है ना, उसके अंदर जो है ना हमारी इंटरवेंशन और लोगों की इंटरवेंशन भी मैं एवेल्युएट कर रहा होता हूँ। आप ये देखें कि बिफोर मैं आपको एक इंटरनेशनल एग्जांपल दूं कि जो मॉल न्यूट्रिशन है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत बड़ा मसला है, और जो नेशनल न्यूट्रिशन जो सर्वे है, उसको हम एनएनएस कहते हैं, उसके मुताबिक जो है 40% प्लस जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे, उनको स्टंटिंग है। और तकरीबन जो है ना 33% बच्चों को जो है ना वेस्टिंग भी है, कि उनकी जो उनका वजन जो है ना वो कम है, और उनके जो मसल्स वगैरह हैं वो सही तरह से नहीं जो है ना वो सही तरह से डेवलप नहीं हो रहे, तो उनको ये है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि जो सदर्न पंजाब है, जिसके ऊपर पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा फोकस होता है, उसमें जो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट है वो 51% जो है ना स्टंटिंग है, और उसी डिस्ट्रिक्ट से हमारा 2 साल से चीफ मिनिस्टर भी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है ना जब मैं वहां पे गया और मैंने इस को पूरा स्टडी किया, इसके भी कोई 5-6 वीडियोस जो है ना अपलोड हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, उसी रीजन के हुए हैं। तो मैं जो है ना डीजी खान ही गया, और मैंने वहां पे जो है ना लोगों से पूछा कि मसला क्या है, इतना कुछ तो जो है ना इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, चीफ मिनिस्टर स्टंटिंग रिडक्शन प्रोग्राम जो है ना एक पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव है, जो है ना मल्टी सेक्टोरल न्यूट्रिशन सेंटर है, उसके अलावा जो है नेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सारे लोग स्टंटिंग के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, बट इधर स्टंटिंग का रेट कम नहीं हो रहा, बल्कि स्टंटिंग बढ़ती जा रही है। और आपको शायद पता होगा कि जो है ना पिछले 10 सालों में पूरे पाकिस्तान में, ये उसका रीजन का इशू नहीं है, स्टंटिंग का रेट जो है ना वो बढ़ गया है, वो कम नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है कि जी इसके ऊपर डिजास्टर रिलीफ भी, ये भी डिजास्टर है, डिजास्टर रिलीफ भी हो रही है, और ये भी एक मेडिकल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना एक इंटरवेंशन है, और मल्टीपल इंटरवेंशन हुई हुई हैं, अरबों डॉलर इसके ऊपर जो है ना खर्च हो चुके हैं। बढ़ता क्यों जा रहा है? अच्छा, जब मैं वहां पे गया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तो वहां पे मैं जब गया तो वहां पे सराइकी बोली जाती है। तो जब मैं लोगों को मिला तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा उसमें तो मैंने सुना है कि रेडियो शो भी हो रहे हैं, टीवी शो भी हो रहे हैं, जो है ना फलाना कुछ हो रहा है। तो फिर मुझे किसी ने बताया जो है ना, और वो भी तौनसे में बताया। तौनसा जो है ना वो हमारे करंट चीफ मिनिस्टर का आबाई जिसको कहते हैं शहर है। उन्होंने कहा कि जी वो सब कुछ उर्दू में हो रहा है, और यहाँ पे लोगों को उर्दू समझ नहीं आती। जैसे अभी मुझे हैदर मिराज साहब ने कहा कि जी आप उर्दू में बोलें, हो सकता है कि मुझे कहा जाता है कि जी आप पश्तो में बोलें, खैर फिर 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 जो है ना मैं फंस जाता। खैर, तो जो है ना जो है ना यहाँ पे तो सराइकी लोगों को समझ आती है, और यहाँ पे वो सराइकी जो कि बिल्कुल जो है ना वो प्योर सराइकी जो है ना समझ आती है लोगों को, क्योंकि अनपढ़ है सारे के सारे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जो है ना मतलब है कि आगे गया, तौनसा से आगे गया, तो वहां पे एक माउंटेन्स की बेल्ट है, तो मुझे ये पता चला कि वहां पे 70% तक स्टंटिंग है। और वो कोई छोटी सी आबादी नहीं है, वो तकरीबन 3.5 लाख जो है ना वो उधर लोकल्स रहते हैं वहाँ। तो मुझे और बहुत हैरानी हुई, मैंने कहा कि इतनी ज्यादा इधर क्यों स्टंटिंग है? उन्होंने कहा एक तो जो है ना यहाँ पे जो है ना कोई जो है ना रिलीफ कोई सेंटर कोई नहीं है, कोई जो है ना कोई नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता। और दूसरा ये है कि उधर तो फिर भी जो है ना कुछ होगा कि कोई उर्दू बोल लेता होगा, कोई समझा देता होगा, यहाँ पे तो किसी को सराइकी भी नहीं आती। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन सी जुबान बोली जाती है? उन्होंने कहा जी सिर्फ बलोची बोली जाती है यहाँ पे, लोगों को ना सराइकी आती है ना उर्दू आती है। ये बेल्ट जो है ना पंजाब की, ये क्योंकि जो है ना बलोचिस्तान के बॉर्डर पे है और ये बिल्कुल कट ऑफ है, तो यहाँ पे सिर्फ बलोची बोली जाती है।
तो अब आप ये देखें कि कम्युनिकेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे हम लोग करोड़ रुपए जो है ना खर्च करी जा रहे हैं कि जी हम इंटरवेंशन पे इंटरवेंशन करी जा रहे हैं, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाई जा रहे हैं। बल्कि मुझे याद है कि एक प्रोजेक्ट था कम्युनिकेशन का, वो 40 करोड़ रुपए का कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट था। और क्योंकि मैंने वो प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें कोई उसके अंदर कोई लोकलाइज्ड जो है ना चीज नहीं थी, बल्कि दुख की ये बात थी। और मैं नईम इकबाल साहब को जो है ना इसे आगाह करना चाहता हूँ, और आप सारे बच्चों को भी, कि उसमें सारा कुछ अंग्रेजी में था, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी भी और कम्युनिकेशन इंटरवेंशन भी। अब हैदर मराद साहब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप 40 करोड़ रुपए जो है ना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के अंग्रेजी में जो है ना आप किसको करना चाह रहे हैं, स्टंटिंग को, तो स्टंटिंग अमीर लोगों को नहीं होती, थोड़ी सी होती है, वो खैर अलग स्टोरी है पूरी की पूरी, बट 95% जो है ना वो गरीब लोगों को होती है और उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो आप जो है, और ये डोनर फंडेड था, ये डोनर फंडेड था कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो ये चीजें जो है ना फिर इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो हैं जमीनी हकाइक को जानें और बिल्कुल लोकलाइज्ड इंटरवेंशन करें लोगों के और स्टेक होल्डर जो उधर के हैं उनके मुताबिक, और उन्हीं लोगों से जो है ना हम हल जो है ना ढूंढें, और उनसे हल ढूंढ के हाँ फिर उसके ऊपर हम अपना दिमाग लगाएं कि इस चीज को अगर हमने करना है तो कम से कम पैसों में, कम से कम जो है अफराद से, और बेहतर से बेहतर तरीके से, जिससे अकाउंटिंग और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है और स्केलेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो सके। तो आप जो है कम्युनिटी के साथ जो है आप जो है ना फिर उधर इंटरवेंशन करें। और इसका बेहतरीन हल, अभी मैं हल पे भी आने लगा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हैदर साहब कहने लगेंगे इसका हल क्या है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो है ना जो मैं पिछले कोई 25 साल से जो है ना इसी रास्ते पर लगा हूं कि हमारे मुल्क का एक बहुत फायदा है, हमारा नाम है पाकिस्तान, इधर पाक लोग रहते हैं। तो वो पाकीज़ा पानी के अंदर जो है ना हर जगह मस्जिदें हैं माशाल्लाह से। जहां पे मस्जिदें नहीं हैं वहां पे अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी है तो वहां पे चर्च है, और अगर हिंदू कम्युनिटी है तो वहां पे जो है ना वो मंदिर है, और अगर सिख कम्युनिटी है तो वहां पे जो है ना गुरुद्वारे हैं। आप जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना रिलीजियस प्लेसेस को जो है ना आप यूटिलाइज करें, वो सेंटर होता है किसी भी कम्युनिटी का। आप जो है ना सबसे पहले मैनेजमेंट कमेटी के साथ जो है ना आप एंगेज करें, सिर्फ मौलवी साहब के साथ ना गुफ्तगू करें, मौलवी साहब के साथ तो जरूर आप दोस्ती करें क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो स्पोक्समैन है उस इलाके का, और वो हर नमाज के बाद जो है ना वो आपके जो है ना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है या नमाज से पहले। और दूसरा जो है ना जो मैनेजमेंट कमेटी है उस रिलीजियस प्लेस की, वो इन चारों की होती है। अगर जब आप निकलेंगे तो जो है ना जो पॉपुलेशन होती है, मैंने आपसे बात की थी जो है ना उधर थ्रपारकर की, तो वहां पे ना हमारे दफ्तर को जो है ना एक आईएनजीओ के शख्स मतलब एक अफसर मुझे मिले बहुत अभी लास्ट ईयर। तो उन्होंने कहा कि सर जो है ना मैं उधर गया हुआ था तो हम असेसमेंट कर रहे थे, तो हमने पूछा सबसे इफेक्टिव कौन है, तो उन्होंने कहा जी भगवान बैंक वाले जो है ना बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जी मैंने तो बड़ा कुछ जो है ना स्टडी किया, मैंने कभी भगवान बैंक का नाम नहीं सुना। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको पता है कि भगवान बैंक जो है ना वो कौन सा है। मैंने कहा हाँ जी, वो जो है ना थ्रपारकर में, वो जो माशाल्लाह जो हिंदू कम्युनिटी है वो हमारे दफ्तर को भगवान बैंक कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ना ये भगवान ये भगवान बैंक है। तो यही चीजें जो है ना जो लोकल टेक्सचर है और कॉन्टेक्स्ट है उसको आप जान के, आप जो है ना ये रिलीजियस प्लेसेस को जो है ना और उनकी मैनेजमेंट कमेटीज को, और फिर जो है ना उसी से आपको सब कुछ पता चलेगा, और आप उसको यूटिलाइज करें, उनके साथ एंगेजमेंट करें, उनको अपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान में भी रखें, और उनको जो है ना एक कंप्लीट शुरू से आखिर तक, और फिर एग्जिट स्ट्रेटजी भी देखें ना, आपने जो भी इंटरवेंशन करनी है आपने एग्जिट स्ट्रेटजी देनी है, और फिर एक एग्जिट स्ट्रेटजी दें, उन्हीं के थ्रू जो है ना आप इसको कर दें। अब मेरे पास टाइम नहीं है बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप नेपाल में जो उनका वाटर इंटरवेंशन प्रोजेक्ट था ना उसके बारे में आप पढ़ें, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा अच्छा। नेपाल में। जी जी जी। नहीं नहीं सर, मतलब हम कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा था कि, लेकिन वो आई एम हाँ सॉरी बस वो मैं इसको एंड कर आपने। रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ। सर। जो है ना मसला यही है कि जब आप टीचर को पढ़ाते हैं ना माइक्रोफोन, तो फिर जो है ना खत्म नहीं होती गुफ्तगू। और अभी तो मैं अरूज को यही कह रहा था कि मैं कहा मैं 2 दिन की वर्कशॉप तो यही पॉइंटर्स के ऊपर बन सकती है वैसे। वो मैं सुबह से लिखता जा रहा था तो वो खत्म नहीं हो रहे थे, फिर मैं लिखता गया। अच्छा,
तो मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि आप नेपाल वाला एग्जाम्पल देखें और जो है ना उसको कर लें। 3 आखिरी जो चीजें हैं ना वो ये है कि जब आप कम्युनिटी के साथ जो है ना एंगेज करें तो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दें, गुफ्तगू कम करें और काम ज्यादा करें। मैं ये कहता हूँ छोटा सा काम वहां जाके कर दें, आप डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दें, आप एक्शन बेस्ड लीडरशिप को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि वॉक योर टॉक, जो आप कह रहे हो उसको कर दो उधर ही, छोटा छोटा छोटा, बड़ी चीजें नहीं, छोटा छोटा, कम गुफ्तगू करें, काम ज्यादा करें। और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट में, कि आप कंपीट ना करें लोगों के साथ, कोलैबोरेट करें और नेटवर्क डेवलप करें। ह्यूज सोशल इंपैक्ट आएगा। जी अब क्वेश्चंस पूछ लें आप। थैंक यू सो वेरी मच जी। एक तो नईम साहब ने कहा कि अखवत कम्युनिटी हैज एक्सीलेंट आउटरीच, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट जी। थैंक यू सो जो सर हमने जो चीज़ें व्हाट वी हैव डिराइव्ड, अब जब हमने यूथ एंगेजमेंट की बात करनी है खास के केपीके के तनाज़ुर में, और जैसा आपने कहा कि बहुत उम्दा काम हो रहा है, बट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है। अब चीज़ें लोकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमें याद है कि कल भी जब हम नईम साहब के साथ बैठे हुए थे तो हम बार बार यही कह रहे थे कि हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात करनी, हमने लोकल एंगेजमेंट के ऊपर बात करनी, हमने ग्रास रूट लेवल पे काम करना। तो दैट इज द पर्पस एंड की ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज दैट वी आर डूइंग। तो अभी जो आपने 3 चीजें कही हैं उनमें एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है बच्चों के लिए, कि जो भी चीज हो इतनी बड़ी ना हो कि उसको एग्जीक्यूट होने में 6 महीने लग जाए, तब तक कोरोना खत्म हो जाए। तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो इट शुड बी एप्ट, छोटा हो पर इम्पैक्टफुल हो। कोलैबोरेट करें, compete ना करें, डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील, और वॉक योर टॉक। तो दीज आर द की लर्निंग्स दैट वी हैव। डू वी हैव और एनी एक और चीज है कि क्वेश्चंस? अपने आप को एम्बेड करें कम्युनिटी के अंदर, एम्बेड करें कम्युनिटी के अंदर, एम्बेड करें, अपने आप को बिल्कुल ठीक घुसा दें कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी, अपने आप को कम्युनिटी में एम्बेड कर दें। इफ वी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट ऑन चैटबॉट। Naeem साहब, anything that you would want to add and localize it in terms of what we are looking at towards solutions? नहीं जी, आई थिंक हैदर साहब ने बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि फॉर डूइंग एनीथिंग वी नीड टू डू द कम्युनिटी इंटरेक्शन, और कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, दो इट्स डिफिकल्ट टू गो फॉर कम्युनिटी आउटरीच इस तरह जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन में होती, बट आई थिंक देयर इज अ मैसेज फॉर द टीम्स कि आप अपनी लोकल विजडम यूज़ करें, लोकल एक्सपीरियंसेस यूज़ करें और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है लोगों से कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया हुसैन हैदर साहब, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। वेरी काइंड यू। मैं अगर नईम साहब आपको आपके साथ शेयर करता हूँ ये कोविड का एग्जांपल, ये इसी तरह जो है ना बंदे को वापस पॉइंटर के ऊपर आ जाते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे लम्स के अंदर जो है ना मैंने कोई 11 सोशल एंटरप्राइजेस बनाए, तो 11 के 11 सोशल एंटरप्राइजेस माशाल्लाह कोविड के ऊपर काम कर रहे हैं और हजारों फैमिलीज के साथ जो है ना वो कनेक्ट हैं। बट आई कीप इट वेरी शॉर्ट। जो आपका एग्जांपल है ना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो बच्ची का नाम है वर्दा, और वो लैया जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर जो है ना वो इंटरवेंशन कर रही है। तो उसने सोशल डिस्टेंसिंग को और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने के बाद जो है ना माशाल्लाह से उस लड़की ने बगैर किसी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, और बहुत गरीब खानदान से, क्योंकि वो हमारी 100% स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, उसने कोई 1200 फैमिलीज को जो है ना राशन पहुंचवाया अपनी लोकल टीम के साथ। और अब जो है ना वो आगे चली गई है, वो राशन तो दे ही रही है, वो तो एक उसकी स्ट्रीम लाइन चल रही है। दूसरा वो पीपीपी इसके ऊपर आ गई है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है ना गवर्नमेंट ने नहीं वहां पे पहुंचाया, उसने जो है ना वो उधर सारे लोकल्स को जो है ना वो पहुंचाई जा रही है। और वो लैया को जो है ना वो सबसे पहले 100% पीपीई डिस्ट्रिक्ट जो है ना डिक्लेयर कराना चाह रही है। सो ये गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना उस अपने आप को एम्बेड कर लें तो लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर आपको वहां पे लोकल सपोर्ट बहुत सारी मिल जाती है। तो ये चीज कीजिएगा। दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपके बाद से हैदर मिराज साहब मुझे वो आया कि कोहाट के अंदर जो है ना वो एक मुझे पता चला, वो मेरे जो है ना वहाँ पे जो एक मैनेजर है उन्होंने मुझे जो है ना भी जो है ना भिजवाया, इतला भिजवाई चंद दिन पहले, कि वहाँ पे राशन बैग में ना मूंग की दाल जो है ना वो मतलब बाकी सारी बहुत सारी चीजें थी पर उसमें मूंग की दाल थी। तो उन्होंने कहा कि जी उसके ऊपर जो है ना कोई इतना खास जो है ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हमें मिला। तो मुझे सडनली याद आ गया
तो बजाय कि वो मुझे कहता, क्योंकि मैं कोहाट के अंदर जो है ना मैंने वहां पे काफी टाइम गुजारा हुआ है, तो मैंने कहा हाँ वहां पे तो लोग लोबिया शौक से खाते हैं। तो उसने कहा सर बिल्कुल आप जवाब सही दे रहे हैं, उनके अंदर बजाय हम मूंग की दाल डालने के हमें लोबिया के जो है ना पैकेट्स बना के जो है ना वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे, क्योंकि लोबिया जो है ना स्टेपल फूड है वहां का। शायद कोई कोहाट से होगा तो ही और शी माइट बी नोइंग दैट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आई जस्ट ऐड ऑन कि दिस इज वेरी स्पॉट ऑन। हम एक प्रोजेक्ट अभी कर रहे थे साउथ नॉर्थ वजीरिस्तान के साथ, तो वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मतलब हम फास्ट के अंदर वी वर हाउस्ड, तो एक दिन शायद पालक पकी और वो उन्होंने नहीं खाई, और हमें समझ नहीं आई कि ये क्या हो सकता है, कि क्या बट इज दिस पॉसिबल द रीजन। और वो हमसे लड़ना शुरू हो गए, और इन्होंने कहा हमें लोबिया खिलाएं। हमने कहा हम पालक चिकन खिला रहे हैं। उसने कहा हमें नहीं चाहिए पालक चिकन, हमें लोबिया खिलाएं। तो यस वी कैन रिलेट टू दैट। दिस इज मतलब आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, कि आप जिस कम्युनिटी के ऊपर जा रहे हैं उनकी जरूरत को देखें और इस तरीके से यूथ को एंगेज करें। और इसी के साथ हमें मतलब कमेंट भी आना शुरू हो गए हैं लोगों के। सो यू नीड टू लोकलाइज द डायनामिक इन यूथ एंगेजमेंट। आपने अगर अपने यूथ को एंगेज करना है, आपने सोशल काम करना है, तो आपको अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज और अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपको लोकल इन्फ्लुएंस जो है उसे देखना चाहिए। सो वेरी वेरी राइटली पुट। डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस जी फॉर ना हुसैन क्वेश्चन रजा होने साहब? चाहिए। आई वुड लाइक मोर क्वेश्चंस एक्चुअली। अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलूं कि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चन, कोई सही और गलत क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है। और इस बात पे भी ना कभी शर्माएं कि जी जैसे होता है, क्योंकि कई दफा इंसान होता है कि मैंने सवाल पूछा तो सारे लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे, वो बाकी सारे बेवकूफ़ हैं जो है ना। आप बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, आप सवाल पूछें, सवाल पूछने वाला हमेशा अक्लमंद होता है, बेवकूफ़ नहीं होता। आप सवाल पूछें और सवाल पूछा करें आप लोग सब। ये मसला, ये हमारा गेम जो है ना स्कूल का मसला है। स्कूल में उस्ताद ने ना मुझे भी बड़ा मारा हुआ था। मैं जब सवाल पूछता था तो मुझे डंडा पड़ता था। तो मुझे समझ आ गई थी कि सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि डंडा पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा मसला है। इस कल्चर को भी हमने ख़त्म करना है कि जो है ना सवाल पूछना जो है ना वो ये नहीं है कि बदतमीजी है। सवाल तो जो है इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं इकरार कर रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ का नहीं पता। तो ये भी एक सच होता है। तो आप सवाल पूछें। मैंने इसलिए एग्जांपल्स आपको बहुत सारे दिए। आप जो है वो उन एग्जांपल्स के अलावा भी जो है ना आप पूछ सकते हैं कि जो जीबी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एजेके के अंदर पोस्ट अर्थक्वेक के अंदर जो है ना मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ 2010 के फ्लड्स के अंदर। वो मुझे अरूज ने याद कराया, बिल्कुल इस सेशन से पहले मैं भूल जाता हूँ, और मैं वो बूढ़ा प्रोफेसर हो गया हूँ जो भूलना शुरू हो गया कि वो डेंगी के अंदर भी जो है ना उसके अंदर भी हमने बड़ा काम किया था। अगर उससे कोई रिलेटेड है, अगर आपने ये जो हमारे इधर इंटरवेंशंस हैं फाटा में और पूरे केपीके के अंदर, तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, हम हाजिर हैं। आप पूछें। एनी क्वेश्चंस जी? मेरा Sir, I सेकंड have a ख्याल question, सवाल आ sir. रहा है। कहीं से आवाज आई थी। Sir, I अच्छा, have, sir, I have a question, sir. Sorry to जी जी interrupt. जी जी। सर हम अभी तो जो कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट आइडिया दे रहे हैं ना सर, तो एक तो होता है सर कि आप सिर्फ आइडिया दे दे, वो हार्डवेयर टाइप होता है, उनको एक प्रोटोटाइप चीज बना रहे हैं आप, उस एक वो होता है। एक इस तरह होता है कि आप उसके लिए बाकायदा एक ऐप बना ले। तो ये तो दो फिर प्रोजेक्ट हो गए, क्योंकि अलग उसके लिए कोडिंग करना, बैठना, उनके लिए चीजें सेटअप करना। तो ये दो, ये जरा बता दें कि इसमें हम कौन से वाले को फिर हेड करें। यू हैव टू ऑप्ट, इट कैन बी एनीथिंग। ये आप लोगों की आपस की टीम का डिसीजन होगा। व्हाट डू यू वांट टू ऑप्ट? अच्छा मैं इधर थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ हैदर मराद साहब, सही, बिल्कुल। जो है ना, क्योंकि हम लोग भी इसी तरह कर रहे हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पेंडेमिक से पहले ना मैंने जो है ना 11 सोशल एंटरप्राइजेस बनाई, और उसमें अरूज और मेरे बाकी भी 3 जो टीचिंग असिस्टेंट्स हैं उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। आई अप्रिशिएटेड वेयर एवर आई गो। आई कुड नॉट हैव डन इट अलोन, मैं खुद नहीं कर सकता था। तो हम लोगों ने कोई 18 प्रोजेक्ट्स जो है ना वो जो है ना पाकिस्तान के अंदर, जिसका कोई पेंडेमिक से कहीं तल्लक नहीं था, वो हमने पूरी डेवलप की, हमने उसको रोल आउट कर दिया, और 14 तारीख को जो है ना यूनिवर्सिटी बंद हो गई। अच्छा, और ये भी था कि पता नहीं अब खुलेगी कि नहीं खुलेगी, और पहली जून तक खुलेगी, उस वक्त तक सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, बर्बादी हो गई। हम लोगों ने 2 दिन नहीं लगाए होंगे, और हमने वो सारे प्रोजेक्ट जो है ना उनको तो हमने हॉल्ट पे कर दिया। हमने कहा कि जब यूनिवर्सिटी खुलेगी वो तो हम चला देंगे इंशाल्लाह। हमने उसको टोटली पेंडेमिक की तरफ ले गए, और क्योंकि उस वक्त जो जरूरत थी वो नेचुरली इमीडिएट रिलीफ की थी, तो हम लोगों ने 2 चीजें की।
और ये अगेन मैं टेक्नोलॉजी और उसको जो है ना मैं मिलाप कर रहा हूँ आपको। एक हमने ये किया कि हमने मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ना लोकलाइज्ड और इंटरनेट बेस्ड जो है ना वो करने शुरू कर दिए। दूसरा जो हमने काम किया वो वैसे जैसे आपको बताया कि जो है ना रिलीफ वर्क करना शुरू कर दिया, और जहां तक हम हो सके जो है ना कुछ हम लोगों ने लोगों को गाइड करना भी शुरू कर दिया। तीसरा काम जो अभी हमने स्टार्ट किया है और जो है ना बल्कि बड़ी मजेदार बात यह है कि उसकी लॉन्च आज ही हो रही है, और वो ये है कि 11 जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स है ना वो भी डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, और इनमें जो बच्चे जो है ना वो कोई आईटी के एक्सपर्ट नहीं है, बट इसके अंदर वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताया, कोलैबोरेट विद एन आईटी एक्सपर्ट। तो आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो फिजिकल बेस्ड और जो है ना आईटी बेस्ड या ऐप बेस्ड भी बना सकते हैं, देयर इज नो हार्म। और कोई आजकल इतना टाइम नहीं लगता, कोलैबोरेशन है। आप अपने दिल को बड़ा करें, इधर से दोस्त को पकड़ो, हर कोई अच्छा बंदा है, आप उसको आ जाओ भाई, उधर से पकड़ो अच्छा बंदा है, आ जाओ भाई। आप जो है ना प्लेटफॉर्म बन जाएंगे जी। अच्छा, 5 6 7 8 10 लोग जो हैं आपकी अपनी टीम के अलावा आपका टेक्निकल हेल्प आपको कर दें, आई डोंट थिंक इट विल बी एनीथिंग रॉन्ग। ये भी तो एक स्किल है कि कैसे आप डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करके आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना उसको अप्लाई कराएं। सो मेरे ख्याल में तो यू कैन डू बोथ ऑल्सो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। 1 महीने के अंदर जो है 3 pronged जो है ना अप्रोच आप जैसे स्टूडेंट्स ने की है, एक रिलीफ कर दी है, एक ब्रॉड बेस्ड अवेयरनेस कर दी है, और थर्ड जो है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड है। और उसका जो रोल आउट टाइम है वो कोई ज्यादा नहीं है हैदर मराज साहब, इट हैज टू बी रोल्ड आउट बाय द फर्स्ट ऑफ मे। तो एब्सोल्युटली जी। बस इतना ही है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी आग लगी हुई है। अब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो हुसैन साहब इज वेरी राइटली पुट। और अगेन दिस ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट जो एहसान ने हमें सुबह बताया था कि यू डू नॉट हैव टू बी अ आईटी गाय और अ बिजनेस गाय, यू हैव टू बी अ डूअर, बाकी सब कुछ हो जाता है। सो you are a hardware guy, you have a technology guy with you, so you both can do all the wonders that you look up to. Since you do not have a question, thank you so very much, Hussain Saab. It was an honor and a pleasure it's my hearing you honor. out. It was a great learning Sir, experience I have of a ours. question. चलें Uh, पूछ लें। जी जी। Sir, how do you measure social impact? गुड वन है। अच्छा, जो है ना इसका अक्सर मैं बताऊं क्या जवाब देता हूं, बड़ा आसान सा, बट मुझे माफ कर दीजिएगा इस आसान जवाब देने का। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इसका आसान जवाब है कि गूगल। ठीक है जी। अच्छा, नाउ व्हाई डू आई से दैट, क्योंकि देयर आर जो है ना कई दर्जन टूल्स हैं सोशल इम्पैक्ट को मेजर करने के, कई दर्जन। ठीक है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आप जो है ना, और ये गूगल बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं कोई स्लाइडें नहीं बनाता, मैं कोई स्लाइडें नहीं बनाता, कहीं भी दुनिया में पढ़ाता हूं ना, मैं स्लाइड बनाता ही नहीं हूं। मैं उन्हें कहता हूं स्लाइड अगर करनी है तो अभी मैं गूगल कर देता हूं, लाखों स्लाइडें आ जाएंगी। इसलिए जो है ना ये यही खूबसूरती है टेक्नोलॉजी की। आपने अपनी मर्जी का सबसे पहले जो है ना आपने सोशल इंपैक्ट टाइप करें, सोशल इंपैक्ट के बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे। आपको जो सबसे ज्यादा सूट करता है ना सोशल इंपैक्ट का डेफिनेशन, आप पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ना आप फिर जो है ना एडवांस सर्च में जाएं, और आप उस डेफिनेशन के मुताबिक जो सोशल इंपैक्ट का टूल सबसे अच्छा है ना आप उसको जो है ना वो कर लें। फॉर एग्जाम्पल जो है ना देयर इज अ टूल विच इज कॉल्ड फोर्स फीड एनालिसिस, जो है कि आप जो है ना पूरा जो सोशल सिनेरियो का ना फोर्स फीड एनालिसिस कर लेते हैं। अब फोर्स फीड एनालिसिस करने के तकरीबन जो मुझे आते हैं तरीकेकार वो 27 मुख्तलिफ मॉडल्स हैं विद इन दैट एनालिसिस। नाउ अगेन जिसको कहते हैं विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग, एंड देन बेस्ड अपॉन दैट आप जो है ना उसमें से कैसे सोशल इंपैक्ट निकालते हैं। तो मेरा सिर्फ आपको ये कहने का मतलब ये है कि बजाय कि आप ऑफ ट्रैक हो जाए ना, इसका आसान हल ये है, गूगल करें, अपने मतलब का डेफिनेशन ढूंढे, अपने मतलब का डेफिनेशन ढूंढ के आप जो है ना इवन जो है ना आप फ्रेमवर्क भी अपने जो है ना उसके मुताबिक ढूंढें, और फिर छोटा सिंपल इंपैक्ट बेस्ड अगर आपने इंपैक्ट एनालाइज करना है तो कीप इट सिंपल, जो है ना ये सक्सेस होता है। ज्यादा मुश्किल चीज के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत आप आसान रखें। हाँ, फिर आपको जब समझ नहीं आएगा तो मेरा ईमेल एड्रेस मेरे ख्याल में हैदर मराज साहब के पास है, मैं आपसे We'll वादा share it करता हूँ। with all of you. अच्छा, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जो वादा होगा वो पूरा होगा, दूसरा नहीं होगा। फोन मैं नहीं बिल्कुल सुनता, तो ये मैं बड़ी क्लियर बात कर दूं। एसएमएस का शायद मैं जवाब ना दूं, आप मुझे ईमेल करेंगे ना, और ये जरूर आप लिखिएगा कि आप कौन हैं और आप कहाँ हम लोग मिले, ताकि मैं उसको रिलेट कर सकूं। आप ये कहेंगे कि हैकाथॉन में मिले थे, तो मैं जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद आपको कह रहा हूं कि जी आप मुझे कर दें।
आपके पास सिर्फ एक सवाल नहीं आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके पास बहुत सारे सवाल आएंगे। आप जितना आसान रखेंगे सवाल को उतना अच्छा आपको जवाब मिल जाएगा। और जनरलाइज्ड सवाल नहीं पूछना, स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। जी हम फलाने गांव गए थे, उधर जो है ना ये काम हुआ था और ऐसे नहीं हुआ था, और हम थोड़ा सा गाइड कर देंगे क्या करना है, आपको जवाब जो भी मुझे समझ आएगा मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों का नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। मैं थैंक यू कह देता हूँ क्योंकि हैदर साहब आपने Thank जो you है ना, so very much. आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जो है ना मेरे मुल्क का जो फ्यूचर है ना, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है, मेरे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो आप यूथ हैं। आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझें, अपनी अहमियत को। और आपको मैं बता दूं कि आपके अंदर एक समुंदर छुपा हुआ है, एक समुंदर छुपा हुआ है। आपने सिर्फ उसको जो है ना एक रास्ता देना है बाहर निकालने का। जब तक आप उसको अपने अंदर दबा के रखेंगे ना तो चीजें नहीं तब्दील होंगी। आप जब चीजों को जो है ना अपने अंदर से बाहर निकालेंगे और गलती करना सीखेंगे, जरूर गलती करें, कभी ना शर्माएं गलती करने से या सवाल पूछने से। गलती करें, सवाल पूछें, छुपानी नहीं है गलती। गलती करके आप बता दें जी गलती हो गई है। कोई दुनिया में शख्स जो है ना वो कामयाब नहीं हुआ गलतियां ना करके, बल्कि जितने लोग नाकाम है ना वो लोग हैं जो गलतियां नहीं करते। आप गलती करें, सीखें, आगे बढ़ें। तो मैं यहाँ पे जो है ना एंड करता हूँ कि बदकिस्मत है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। So thank you so much. तो थैंक यू सो मच, It वेरी was काइंड ऑफ a यू। great learning experience. Thank you. Thank you, Ayuj, for being us. थैंक इंशाल्लाह यू आप साहब, लोगों इट को वाज तो रियली जरूर नाइस। मिलिएगा। हाँ जी, थैंक यू सो